कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जब हम इस सोच में पड़ जाते हैं कि अब हमें कुछ नया शुरू करना है। और ये शुरुआत किसी साल के बदलने से या न्यू ईयर स्टार्टिंग से होती है, या जॉब स्विच करने से, एक जॉब से दूसरे जॉब में जाने से, या फिर किसी रिलेशनशिप के टूटने से, या हो सकता है किसी अपने प्रियजन के लॉस से। और या फिर उस पल में जब ऐसा लगता है कि अब बस बहुत हो चुका, अब मुझे कुछ अलग करना है, या अब मैं ये सह नहीं सकती, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा पास्ट मुझे पुल कर रहा हो, या फिर लाइफ में मुझे सब कुछ अनसर्टेन सा लग रहा हो, या फिर ऐसा लग रहा हो कि मतलब ब्रेन हमारे साथ में बहुत ही एक अलग ही तरीके के गेम खेल रहा हो, कि सब कुछ कंफ्यूजिंग स्टेट में लगे, और कॉन्फिडेंस हमारा पूरी तरीके से हिल चुका हो। तो उस स्टेट ऑफ माइंड में हम चाहते हैं कि अब बस कुछ चेंज किया जाए, कुछ बदला जाए, कुछ स्टार्ट किया जाए। तो नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बार फिर से आए हैं अपनी कही अनकही बात लेके। और आज का जो टॉपिक है, शायद आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा कि स्टार्टिंग अगेन। तो प्रेम साई, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, आपकी जो एक्सपर्टीज़ है उसके हिसाब से साइकोलॉजी क्या कहती है। मतलब जब कोई इंसान यदि कुछ नया स्टार्ट करना चाहता है तो उसके पीछे की साइकोलॉजी किस तरह से रहेगी। आपने शायद श्वेता बहुत अच्छे से सिचुएशंस आपने डिस्क्राइब किया है, जैसे जॉब लॉस, जो मैं फिर से दोहराना नहीं चाहती। वो सारे कॉन्टेक्स्ट में हम when we are coming to that phase and when we are thinking that it is enough now, I don't want to be in this state, and or maybe I'm retired now, I want to do something in my second innings of my life, or my child is grown up now and I'm a bit free and I want to restart my career, whatever context. The first thing that comes is the self-talk, the self-narratives. Those narratives that you start talking to yourself. आपके अंदर एक डिबेट चल रही होती है. Now, from where does that debate come from? Those debate come from all of your past experiences, I would say. आपके लाइफ में rejections हुए होंगे. Possibly you could got bullied in your school days. You might have got rejected in many of the interviews in your initial starting of your career, or you could have got rejected by many people whom you have loved. कोई भी सिनारियो हो, वो सारे all those stories, even if the stories are done, it's not present right now, still those stories are alive in your system, in your mind. And when you are in this phase of life, all those past stories, whatever your experiences is, आपके जो भी experiences life में रहे होंगे, the unpleasant ones, that starts playing a role right now, making you confused, making you fearful, making you not so confident. And we humans are great meaning making machines. We all know that. So from those past stories, वो जितने सारे past stories हमारे हुए हैं, वहां से क्या करते हैं हम अपने लेंस से, अपनी कंडीशनिंग से, अपने आप को जिस तरह से समझ में वो स्टोरी हमको आया है, through those lenses we create meaning out of it, and then we create a conclusion out of it. और वो conclusion ऐसा है कि हम verdict सुना देते हैं कि I'm not good enough now because I got rejected many times. I'm not good enough that मेरे को किसी का प्यार मिले, because there are many boys who rejected me. मुझे कोई वेंचर में पैसे ही नहीं लगाना because पास में मेरे पैसे डूब चुके हैं. So we create these kind of meanings, and उस मीनिंग को हम कंक्लूजन बना लेते हैं और हम उसको उस स्टोरी के साथ इट्स लाइक हम चिपक जाते हैं स्टोरी के साथ. इट्स लाइक अ फेविकॉल यू कैन से, एंड वो स्टोरी हमारे पीछे ही नहीं छोड़ती. And because of this entanglement with that past stories, past conditioning,
हमको इस स्टेट ऑफ माइंड में और इस फेज ऑफ लाइफ में व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट टू स्टार्ट अगेन, वी आर नॉट एबल टू स्टार्ट अगेन, because psychologically we are even if thinking wise you are thinking, but the nervous system is not ready of yours. And what I would say, when you are in that phase of life, the first thing one should actually start thinking about is story se hatke, can you see yourself or understand yourself and trust all your experiences, the past experiences, and with an open fresh eyes, can you look at your own yourself at this point of life or phase of life. So that's how the difficulty is all about, that's how the psychology runs. जब हम उस phase of life में होते हैं और हम सोचते हैं शुरू करेंगे but कर नहीं पाते. Absolutely. So Shweta, you have been in your corporate career for almost more than 2 decades. एक बात बताइए, आपने काफी लोगों को लीड किया है, यू हैव बीन लीडिंग अ लॉट ऑफ पीपल इन योर कॉर्पोरेट स्पेस. लोगों को किस चीज से ज्यादा डर लगता है, वेदर इट इज दोबारा ट्रस्ट करने से या फेलियर से? गुड क्वेश्चन. वेल फ्रेंड्स, आई थिंक लोगों को इस बात से डर नहीं लगता कि वो फेल हो रहे हैं. लेकिन उनको जिस बात का जो मेन स्ट्रगल करते हैं वो अपने आप का खुद का ही ट्रस्ट जब वो खो देते हैं. क्योंकि फेलियर तो क्या है, एक इवेंट है और ट्रस्ट है एक इमोशनल डिसीजन, राइट. तो जैसा कि मैंने कई बार देखा है, खुद मैंने पर्सनली भी इस बात को फेस किया है कि हम कभी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, या कोई प्रोजेक्ट की टाइमलाइन है और प्रोजेक्ट हम उस टाइमलाइन पे मतलब डिलीवर नहीं कर पाते हैं, या फिर कोई प्रोजेक्ट ही हमारा क्लोज हो जाता है किसी ना किसी सिचुएशन में. लोग अपने जॉब स्विच करके स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं और वो भी नहीं चल पाता, या उसमें कुछ सिचुएशन आ जाती है. तो पर्सनली मैं भी कुछ इसी सिचुएशन को फेस कर रही हूँ पिछले 1-1.5 साल से. सो वी हैव बिल्ड दिस प्रोडक्ट इन लास्ट 18 months. And because of some geopolitical situation globally, our investments got pulled off. So financial crisis है आज की डेट में. जो सर्विसेज हमारी रन कर रही थी, जो प्रोजेक्ट्स हमारे अच्छे से चल रहे थे, वहां पे भी एक ऐसी सिचुएशन आई कि एक डील होते होते मतलब नहीं हो पाई, वहीं स्टॉप हो गई, या फिर वो प्रोजेक्ट ही बंद हो गया. तो ये सिचुएशनल है. ये सारी चीजें तो होती ही रहेंगी लाइफ में. अब यहाँ से हम किस तरह से इसको फेस करते हुए, ओवरकम करते हुए आगे बढ़ना है, इज नाउ आवर इमोशनल डिसीजन, एंड दैट एक्चुअली इज ट्रस्ट. तो इस टाइप के फेलियर सिचुएशन में जब एम्प्लॉई जहां ज्यादा तरीके से स्ट्रगल करते हैं, वो ये है कि एक फेलियर हुआ और फिर से बैठ गए. वो जो रीस्टार्ट और रीबिल्ड करने वाला जो फेज है, कुछ रिक्रिएट करने वाला जो फेज है, वहां से थोड़ा सा डर लगता है. तो अभी आज की जो कंडीशन है कि काफी सारी कंपनीज में ले ऑफ चल रहा है. अच्छे मतलब मिड मैनेजमेंट लेवल पे जो हैं और जो एक्चुअली में सीनियर मोस्ट पोजीशंस पे लोग हैं, वो आज घर पे बैठे हुए हैं. और यदि इसी तरीके से अपना ट्रस्ट खो देते हैं, कुछ रिक्रिएट नहीं कर पाते हैं, तो वो अंदर ही अंदर उनको ये चीज आगे फिर से ग्रो करने नहीं देगी. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो इस समय इस सिनेरियो में चल रहा है. यहाँ से एक और जो मैं बात, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगी कि जो काफी सारे सर्टिफाइंग बॉडीज हैं, काफी सारे रिक्रूटमेंट फर्म्स हैं, जो इन लोगों को कहीं ना कहीं अपने जो मार्केटिंग गिमिक है उसमें ट्रैप करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं. और मेरे काफी सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मतलब इस बार इसको इस समय इस सिचुएशन को डील कर रहे हैं उसके साथ में. तो आज की डेट में मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि आप अपने आप को सबसे पहले पहचानो. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर कैपेबिलिटीज, द स्किल्स विच यू हैव, एंड देन यू हैव टू बैलेंस, okay, whatever you have,
इफ यू डोंट हैव सर्टेन स्किल्स, और वो सर्टिफिकेशन, वो एक कोर्स, वो एक वेबिनार या वो एक वर्कशॉप में आप इन्वेस्ट करके यदि आपको सच में कुछ नया रिक्रिएट करने का एक मौका मिल रहा है, then it is always advisable to invest in that particular certification or skill level up. But यदि आपको ROI कहीं से नहीं मिल रहा है तो it's a dead. Okay. और आप वही जो ये एक पूरी की पूरी साइक्लिक इमोशनल, या एग्जैक्टली, तो वहां पे हम फंसते चले जा रहे हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की यूथ को समझना कि वो जो भेड़चाल वाली बात है कि सबने AI सर्टिफिकेशन कर लिया, सबने ये कर लिया और सबके पास वो जॉब क्रिएट हो जाएंगे. तो आज की डेट में आप यदि कुछ नया रिक्रिएट कर सकते हैं, आपके अंदर कुछ नया स्किल है, कुछ नया स्पार्क है, तो वही वो सस्टेन हो पाएगा आगे के लिए. तो सॉरी मैं थोड़ा सा डिविएट हो गई, लेकिन मैं ये बात इसलिए इस मीडियम से लोगों तक पहुंचाना चाहूंगी कि rather than getting into the trap of all these high level or your beautifying courses, certifications, या फिर वो छोटी छोटी रिक्रूटमेंट फर्म्स जो कहती हैं कि आप इतने पैसे दो, हम आपके बैकडोर एंट्री कराएंगे एंड ऑल. rather than getting into that trap, people should stay focused, understand their own skill set which they have, and try to recreate something maybe small in small chunks, and then look for the future. So I think I think to the takeaway from this particular discussion is about that we need to understand ourselves, right? वहां से हमारी strength क्या है, Absolutely. and then building on that. Absolutely. Yeah. So a follow-up question just to understand. Right. आपके पास ऐसी कोई कहानी या स्टोरी है from your team or maybe in your job career, in your journey, who any significant story that you can share to our audiences about who has gone through this and overcome किया है उन्होंने कुछ ऐसा कोई significant story आपके पास है या? Absolutely. मैं मेरी एक फ्रेंड की स्टोरी बताती हूँ और बहुत मतलब कुछ सीखने लायक है इस स्टोरी से, और जो अभी मैंने जो भी सिनेरियो बताया, जो सिचुएशन बताया, आई थिंक उसको रिलेट कर सकेंगे. तो senior leader in a very big corporate IT firm got laid off. करने को कुछ भी नहीं था. Went back to his hometown. Okay. He had some ancestral land. Okay. He started organic farming and he's doing beautifully. Wow. And he wrote book. Yes. That's interesting. Yeah, and it has become one of the bestseller. Wow. So which means that what you already have, make a list of that, what you are already good at, make a list of that. Right. And then start creating on the top of that, taking that as what you already have. जो आपके पास already है, वहां से कैसे आप शुरू कर सकते हो. Absolutely. So it's always trust yourself, whatever you have within, and also trust the process. Correct. Yeah. Because कहीं ना कहीं ये वही गूगल मैप है जो आपको यहाँ से ले जाके वहां से ले जाके प्रॉपर वो डेस्टिनेशन पे ले ही जाता है कहीं ना कहीं. That's a good metaphor actually. Right. बहुत अच्छे से आपने ये एनालॉजी शेयर किया. गूगल मैप मतलब आई थिंक इससे सब रिलेट करेंगे कि भले ही वो आप थोड़ा सा रास्ता भटक गए रहे, बट फिर भी आप व्हेन यू स्टार्ट एक्चुअली फोकसिंग ऑन योरसेल्फ, आप देर सवेर वहां पहुंच ही जाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं. एब्सोल्युटली. प्रेम साई, हम किसी चीज का प्लान बनाते हैं, उसको स्टार्ट करने के लिए एक लिस्ट बनाते हैं या कोई एक डेट चूज करते हैं कि यहाँ से हम इस चीज को स्टार्ट करेंगे. हमारे पास में पूरा मोटिवेशन होता है कि हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है समटाइम्स. लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात से हम वो चीज स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन धीरे 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 स्लो डाउन हो जाते हैं, फिर डिले करने लगते हैं. वो जो प्रोक्रास्टिनेशन की जो हमने बात कही थी, तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये प्रोक्रास्टिनेशन एक लेजीनेस है हमारे अंदर का या फिर कोई इमोशनल रेजिस्टेंस है? इनफैक्ट अ गुड क्वेश्चन श्वेता. सो आई वुड लाइक टू आंसर लाइक दिस कि हम जो ह्यूमंस है ना, वी फंक्शन इन कॉन्टेक्स्ट. सो व्हाट डज इट मीन? हम अकेले ऐसे कोई टास्क नहीं कर लेते, हम हर एक कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग फील करते हैं. आप देखे होंगे कि अ पर्सन हु इज अ ग्रेट प्रोफेशनल इन अ लीडरशिप रोल फंक्शन लाइक अ लायन इन द ऑफिस, बट कमिंग होम
टोटली डिफरेंट बन जाता है, स्कैरी बन जाता है, डरपोक बन जाता है. So we functions differently in different situations and different scenarios. So that's the context. And in that context, we when we think that अभी हम ये शुरुआत कर चुके हैं and इसको हम consistently क्यों नहीं कर पा रहे हैं? The first thing is because आपने laziness की बात की. So laziness and procrastination में difference यही है कि procrastination में a person knows what to do, when to do, but still वो delay करता रहता है. Laziness is I don't want to do, so that's laziness. But procrastination में ऐसा है कि मुझे करना है, पता है, but मैं कल करूंगा या मैं कल करूंगी. Now there are different scenarios to it. कि situation में psychologically क्या हो रहा होगा. So पहला ये हो सकता है कि if a person is procrastinating something, हो सकता है कि वो वाला टास्क उसके लिए उतना चैलेंजिंग नहीं लग रहा हो, इसीलिए उसको करने का मन ही नहीं कर रहा हो. सो दैट इज वन. सेकेंड इज हो सकता है कि दैट टास्क अगर वो करेगा देन somebody will judge him or her, right? So उसके वजह से a person who is procrastinating doesn't want to get judged after doing that work, so he or she will delay it. Third is if reason हो सकता है कि I want to do but I don't know how to do. So यहाँ पे skill set की बात आती है. I am delaying because I don't know, I have not learned how to do. Right. So ये सारे जो different context में there is something for which a person is delaying or procrastinating, and that something is these reasons. These are the emotional resistance. और maybe हो सकता है कि either I will do, then I will do it perfectly, or I will not do. That also could be a reason. Or it would be like, if at all I do, then people will know that I have done, and I have the fear of being seen. That could also be the reason. So do you see the difference in different context, how and what is it that that is bothering you, that can be the reason for which a person is procrastinating. Right. For which they keep delaying things to start. Right. So it's a big side of perception, like how you. Again, as I said, humans are meaning-making machines. Yeah. And they are definitely ये जो behavior हम देखते हैं, this is also is driven from the past stories and their experiences, their conditioning, their brought up. उनके parents की क्या बातें सुन के वो बड़े हुए हैं. Right. In what kind of education system they have gone, and how what the teachers have said, and what the parents have said, and what these people also have adapted from the environment. So it is not only about the environment, it is about, as I said, what you have picked up and how have you interpreted the past stories and what you have concluded from that. That plays a very important role when you are actually procrastinating, or you are taking that choices that I am not going to do it. So if a person says that I am a procrastinator, then we have to really dig deep to understand that what is exactly the reason. I would like to just share something. In a recent Toastmasters meeting, I'm a member of Toastmasters. Last month only, I met a girl. She was in college and she was a guest there. And when it was asked that what is the reason of coming to Toastmaster, she with clarity she shared that I am fearful of being seen, because of which I want to overcome this, and because of which I want to join Toastmasters, and because of which my parents told me that why don't you go and start participating in this meeting so that you can overcome this. So see how these emotions plays a very important role, and this could also be one of the reasons to stop you to start again or to become consistent about it. Right. So Shweta, I have been knowing you for a couple of years now. आपके लाइफ में I know, and I would like you to share this with our audiences, also with our viewers, कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आए हैं जहाँ पे आपको वो एक कदम उठाना, टू स्टार्ट अगेन,
was not a choice, it was a mandate, right? So and उस सिचुएशन में ऐसा भी हुआ रहेगा कि आपकी स्ट्रेंथ कुछ भी बची नहीं होगी, बट फिर भी आपको वो एक कदम उठाना बहुत ही जरूरी हुआ होगा. So can you share such kind of experiences with our viewers? सर्टेनली प्रेम सिंह. तो जैसे कि आपने पूछा कि स्ट्रेंथ शिकन हुई होगी, और एक ही बात कहूँगी कि बहुत बार, मेरे ख्याल से हर रोज़, हर दिन. और जब मैं उस बारे में सोचती भी हूँ तो मैं मतलब मुझे एक अलग ही तरीके का पैनिक अटैक आने लगते हैं. और मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि मैं अपने ही हस्बैंड को अपनी आंखों के सामने जाता हुआ देख रही थी. और वो सीन मतलब कहते हैं ना कि साक्षात, मतलब जिस तरह से वो सिचुएशन हुई, वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मेरे साथ हुए, आई थिंक मैं उसको एवरी डे मैं उसको एक्सपीरियंस कर रही हूँ. 5 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो जो जब डॉक्टर ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे बताया कि बिकॉज कोविड में वो आईसीयू में थे, ही वॉज एट अ वेरी हाई रिस्क सर्वाइवल रेट. तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म करके एक सिचुएशन होती है मेडिकल टर्म में, जहाँ पे आपकी पल्मोनरी आर्टरी, जहाँ से आपको ऑक्सीजन जाती है लंग्स में, तो वहीं पे ब्लॉक हो जाता है, वहीं पे क्लॉट हो जाता है. तो व्हाइल डॉक्टर वाज एक्सप्लेनिंग मी, वो वाली जो सिचुएशन थी जब मुझे, कहते हैं ना कि आप सिर्फ सुन रहे हो, आप नम हो गए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, एंड यू आर एक्चुअली बैक ऑफ योर हेड, you are visualizing your whole castle गिरता हुआ, बिखरता हुआ आपको दिख रहा है. और उस इवेंट में जब डॉक्टर मुझे बोल रहे थे और मैं उन्हें बोल रही थी कि कुछ तो हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी तो होगी. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मेडिकल प्रोफेशन में हैं, बहुत अच्छे अच्छे नोन हॉस्पिटल्स में हैं, मैं कहीं से भी कुछ भी अरेंज कर लूँगी, पैसा भी बहुत है. इतना ही बोल रही थी मैं उनसे, और सामने मैं देख रही हूँ कि 2 फीट ऊपर मेरे हस्बैंड की बॉडी आती है और नीचे जाती है. और मुझे समझ में आ रहा है कि ये अंत है. और मुझे समझ में ये भी आ रहा है कि अब जो आगे करना है वो तो एक टास्क लिस्ट है ना. देखिए लाइफ कितनी फ्रेजाइल है कि आप जो भी है आज हो, और आप आज इसलिए हो, आप एक माँ, एक वाइफ, एक किसी भी रिलेशन में, किसी भी रोल में, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप इसीलिए हो क्योंकि आप ब्रीथ कर रहे हो. द मोमेंट यू स्टॉप ब्रीदिंग, you will be objectified as a body. Yes. That's the cruel, the brutal part of life. Yes. That's the truth of life. जो आप अपने सामने, आप अपने किसी प्रियजन को इस तरीके से जाते हुए देख रहे हो, और फिर अचानक से जिसके लिए आप इतने दिनों से कोशिश कर रहे हो कि ये सब सही हो जाएगा, शायद फिर से नॉर्मल, शायद फिर से हॉस्पिटल से वापस आने के बाद में लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, इतना सब कुछ सोच रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो, और अचानक से सब कुछ खत्म, और उसे बॉडी की तरह ट्रीट कर रहे हैं और कह रहे हैं जल्दी से इसको यहाँ से हटाया जाए. और तब आपके पास सोचने को कुछ नहीं रहता, क्योंकि डॉक्टर्स का एक लिस्ट रहती है, आपको पहले अमाउंट क्लियर करना होता है आपकी खुद की बॉडी लेने के लिए. आपको नंबर उस समय, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कोविड में, आपको क्रीमेटरी में भी आपको नंबर लगाना पड़ रहा था, आपको म्यूनिसिपैलिटी में नंबर लगाना पड़ रहा था, सो मेनी थिंग्स. तो मैं अपने खुद के बारे में तो कुछ सोच ही नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे खड़े रहना था उस सेम ड्रेडेड वायरस के वायरल टाइटर के साथ में, मेरे अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए. मुझे सिर्फ ये दिख रहा था कि जो हो गया
वो तो हो गया और मुझे नहीं पता उस पे मेरा कितना ही कंट्रोल था, लेकिन अब जो होना है उन लोगों के लिए, मेरे अपने बेटे के लिए जो 9 साल का उस समय, तो उनके लिए मुझे एक स्ट्रॉन्ग, एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन इन द फैमिली टू ड्राइव द होल शो, मुझे उसके लिए, इन सब लोगों के लिए मुझे अपने आप को स्टेबल रखना है। तो उस समय जैसे आपने पूछा कि स्ट्रेंथ मेरी कई बार चैलेंज हुई है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमें पता ही नहीं होती हैं। और मैं शायद इस मीडियम पे, क्योंकि ये बात हो रही है और शायद जितने भी लोग देख रहे हैं, कि मैं चाहूँगी कि सारी विमेन एटलीस्ट फिनेंशियली अपनी सारी चीज़ों को समझें। आपके अकाउंट्स, आपके हस्बैंड के साथ के अकाउंट्स, आपके पासवर्ड्स, या आपकी जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन आज की डेट में है, और कल वो व्यक्ति ना हो, उसके बाद आप किस तरीके से आप स्टेबल हो पाएंगी, वो सारी चीज़ें समझने की बहुत बहुत ज़रूरत है। इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस आपको जिस तरीके से अंडरराइटर्स जिस तरीके से लिखवाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत छोटी छोटी राइटिंग में रहते हैं, बहुत छोटे फॉन्ट्स में रहते हैं, जिसमें आप सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क आप खाली साइन कर देते हो। उस समय आपको लगता है ओके। होम एश्योरेंस पॉलिसी, जो एक एग्जाम्पल मैं सबको बोलती हूँ कि हम लोगों ने होम एश्योरेंस पॉलिसी लिया था, और हमें नहीं पता था कि वो डेप्रिकेट होगा। ओके। तो नोशन ये था कि कुछ भी हो जाए तुम्हें या मुझे, घर फ्री हो जाएगा। ओके। बट वो भी नहीं होता। तो ये बहुत छोटी छोटी डिटेल है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको, जो पता नहीं होती हैं आपको खुद से स्टार्ट, अब हम वहीं पे शुरुआत जहाँ से की थी वहाँ पे आते हैं कि इन सब चीज़ों के लिए आपको तैयार होना पड़ता है और स्टार्ट करना ही पड़ता है। और यही लाइफ का रिजिलियंस है कि आपके साथ जो हो गया, लेकिन अब आगे आपको किस तरीके से फेस करना पड़ता है। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि लाख कोशिश कर लें प्रैक्टिकल रहने की, क्योंकि शायद से सब लोग यही कहते हैं कि अब आगे का देखो, लेकिन सच बताओ ना प्रेम साई, कि हम कितना भी चाह लें, कोशिश कर लें कि हम व्यवहारिक रहेंगे, हम प्रैक्टिकल रहेंगे अपनी लाइफ में, लेकिन और इस बात को चलो बीत गई करके सोच देंगे, लेकिन ना कैलेंडर की वो 1 तारीख कहीं कहीं चल रहे किसी गाने की वो एक गूंज, या जब वेदर चेंज होता है तो उसकी एक गंध कहीं से भी आ जाए, वो आपकी उंगली पकड़ के आपको फिर से उसी पास्ट में ले जाती है। और पता है, पास्ट में जाने के लिए तो एक पल लगता है, लेकिन वहां से आज में आने के लिए ना कई बार, कई सप्ताह, कई माह और पता नहीं कितने सारे दिन लग जाते हैं। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो मैं कैसे इसे डील करती हूँ, मैं हर रोज एक नया स्टार्ट करती हूँ, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो लाइफ में अपनी शुरू करी हैं, बस उन्हीं को एक तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से उन्हीं को कंटिन्यूटी में अच्छे से पॉजिटिवली करने की कोशिश करती हूँ। तो श्वेता, एक क्वेश्चन इधर है कि पहला तो आपके इमोशनल रेजिलियंस की, मतलब सल्यूट टू दैट, एंड यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि टास्क तो एक्शन में हो ही जाएगा, बट जब आपके पास वो स्ट्रेंथ ही नहीं होती है, आप ऐसे क्या सोचते हो जो आपको फिर उतनी सी थोड़ी सी स्ट्रेंथ देती है वो एक टास्क को करने की, जब सब कुछ टूट रहा होता है, छूट रहा होता है, गिर रहा होता है, और जैसे आपने बोला कि हर रोज आप एक नया स्टार्ट करते हो, तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सुबह सुबह मॉर्निंग में, I would say that the monsters come to meet us in the morning. All the monsters that you have not attended in your life, they come to meet us. तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे सुबह होंगे जब आपको लग रहा होगा कि उठने का ही मन नहीं कर रहा होगा बेड से। बिल्कुल। तो क्या होता है एग्जैक्टली, एक सोच ऐसी होती है जो आपको फिर से शुरू करने की वो एनकरेजमेंट देती है या प्रेरणा देती है?
आप भी एक माँ हैं और आप समझ सकती हैं कि जब आपको सुपर मॉम की तरह देखने वाला आपका बेटा आपको आके जब मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग कहता है या हग करता है, वही एक इंस्पिरेशन है। मेरे पेरेंट्स जो मुझे हमेशा कामयाब देखना चाहते हैं, शायद इन्हीं लोगों की वजह से मैं आज स्टेबल हो पाई हूँ या लाइफ में कुछ अलग से कुछ अच्छा कर पाई हूँ। तो हर सुबह की जो इंस्पिरेशन है मेरे लिए, बस मेरी अपनी फैमिली है छोटी सी, और ऑफ कोर्स उन्हीं लोगों के लिए मुझे आगे बढ़ते रहना है। और आज आप जो प्रेम से आई हो, वो किस तरह से कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं? सो श्वेता, आप ये क्वेश्चन पूछ के जैसे वो ना, वो पास्ट की बहुत सारी चीज़ें आपने एक ओपनिंग, एक विंडो ओपन कर दिया है आपने। सो the way I would like to answer this is multiple times I have started again. Now there are few things, let me tell you. जब मैं कॉलेज में थी, मेरे भाई की एक्सीडेंट हुई थी और उसी महीने उसकी शादी भी हुई, और 17 दिन, उसकी भाई की शादी के 17 दिन के बाद